begins. Okay, so dear students, good morning everyone. Today we are going to start the revision section of division, what we have done yesterday. And today again we are going to learn some new concepts of division. Okay, so let us start. Division with a single digit. I already told you as this is revision, so that's why I'm taking one number 9324. When we divide it with any number, then what will come? Suppose the number is equal to 4. What will happen? 4 2 ja 8. So 9 minus 8 become 1. This become 13. So 4 3 ja 12. Again 13 minus 12 become how much? 1. So it become 12. Then 4 3 ja 12. After that nothing is remaining. Directly it is 4. So 4 1 ja 4. So this is the quotient and nothing is remaining. So this is the remainder. And this is the quotient. Okay, clear? It is already discussed and it is a casual method what you follow basically when? During the factorization. Suppose 432 comes and when we divide it by 2, same method we follow only. So 2 2 ja 4, 2 1 ja 2 and again 12. So 2 6 ja 12. So directly this is also the method by which we are doing, and this is valid for single digit. It is valid for multiple digit also, but we don't know the multiplication table of more than 2 digit. Just for example, many people have already, they may be knowing the table up to 20 only. Okay, some people may be memorized up to 25, but what about 37? If I divide with the 37, do you know the multiplication table? No. So that's why we cannot perform this kind of a calculation easily through that method. We can do obviously, but that become little difficult. But with the Vedic mathematics, it is possible. So that's why this is the first formula, division with a single digit, that we have done, and today I have done the revision of it. Now we are moving forward, division by 5. Yesterday I have given you the formula how to divide it by 5. Just for example, 4328 is there. So when I divide it by 5, then dear students, we need to multiply by 2. Then what will happen? 8 becomes 16 plus One 1, digit 2 before. becomes 4 plus 1, Yes, 5, sir. 3 becomes 6, and 4 become 8. After that, we need to put decimal 1 decimal before. So the correct answer is 865.6. It means when 4328 is divided by 5, then answer is equal to 865.6. So the formula Sir, is going to because be 5 into 2. multiplied 2 divided by 10. This is the real formula. So I have multiplied with 2. Then due to this divided by 10, I kept one decimal back. Clear? One more question. 237 multiply, sorry, divided by 5. Okay. So how to perform this work? First of all, we have to double it. How much? 7 to the 14, 4, 1. 3 to the 6 plus 1, 7. And 2 become 4. Okay, after that I need to put one decimal here. So the correct answer is 47.4 directly if we divide any number by 5. I hope the concept is clear to everyone. Yes, sir. Next, division by 9. Yesterday I told how to do division by 9. It is extremely easy. 4 3 2 1. Okay, or 4320 directly. I'm just writing it so shortcutly. Okay, now when I divided by 9, then what is the process? Directly 4 written 4, 4 plus 3 become 7, 7 plus 2 become 9, and 9 plus 0 become 9. Is it? So directly I can say that 439 is the quotient and 9 is the remainder. So 9 cannot go because 9 is directly coming. So 9 cannot go. Then what to do? 9 plus 1 become 10. 10. So I will be writing the remainder is equal to 0. Okay, and that 1 is copied here. So the answer is equal to 480 because 79 become 80. So 480 is the quotient and 0 is the remainder. I hope it is clear to you all. This is so simple process which I have done. Okay, and we have done already. Now division by 99. So as it is a two digit number, always we need to keep in that way only. Just for example, 23251 3. What to do? At first we need to prepare the group of 2 2 when I divided by 99. So 2 3 2 5 1 3. This side only we need to prepare start grouping. Okay, now 23 become 23. 23 plus 25 become how much? 48.
48 plus 13 become how much? Sir, 61. Okay, directly we can say 2, 3, 4, 8 is the quotient and 61 is the remainder. Okay, fine. Yes, sir. Next, division with 999. So when this concept comes, 999 means 3 digit. We need to prepare the pair. 4, 3, 2, 1, 8, 9, 1, 1, 2, 0, 3, 7. This much of bigger question we are going to calculate right now. Is it easy? Easy only. So directly this number has to be written 432 because I'm just dividing it by 999. Okay, so I have done directly 3 groupings. 432 plus this much is equal to how much? 621. Please check it is correct or not. Yes, sir, correct. Okay, now this number has to be added with this number. What is the answer? Check it. 733. Okay, now again this number has to be added with this number. Fatapat. 770. 770. So this is the quotient. Means 432621733 is the quotient and this is the remainder. So this is the very simple. See, this much of 12 digit of division with 999 is done so simply, so shortcut with the help of Vedic maths. Okay, so division by 999 so we have already discussed, but I have given you the one question as a revision. Division by the same digit of 9 series. Suppose 432 is there and when we are dividing it by 999, because this is also 3 digit, this is also 3 digit, same digit of 9 series. Okay, so this is also 3 digit, this is also 3 digit. So what is the answer? 0.432 and there will be bar on 432. So is it clear, dear? Sir, this one Yes, not sir. clear. This is not clear. Whatever the number is there, you just write it here and you prepare one bar. And what does it mean? 0.432432 dot 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 dot. Okay. Yes, sir. Okay. If you can say, I can prove it. Just for example, 3 divided by 9. What is the result? According to this formula, 0.3 bar. Is it? According to Yes, this sir. formula, is it 0.3 bar? Now I am just going to prove x is equal to 0.3 bar. So what will be the 10x? 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक तो 3 इधर आ जाएगा, 3.3. तो इट बिकम 3.3 बार. दोनों को माइनस कर देते हैं, क्या होगा? 10x माइनस x बिकम 9x. और 3.3 बार से 0.3 बार गया तो क्या होगा? 3 बार कैंसिल, 3 माइनस 0 बिकम 3. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द x? x इज इक्वल टू 3/9 बिकम 1/3. अदरवाइज 1/3 को भूल जाओ, फिलहाल 3/9 है कि नहीं? जब 3 को 9 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? 0.3 बार आ रहा है कि नहीं? हम लोग उल्टा करके कर दिए. तो वैसे ही इन दैट सेम मेथड 432 when I divided with 999 then the answer become 0.432 and there will be bar on 432. Okay na? Understood? Yes, Suppose sir. 45 is only there and if I divided with 999, what is the answer? 0.45 bar. Very simple. But if the question is 234 divided by 99, then what to do? Because this is not same digit, this is something different digit. What to do? 0.0234. No dear. सर ये वाला फॉर्मूला मैं ऑलरेडी तो बता चुका हूँ ना, ये वाला फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ इसका पिछले वाला स्लाइड पे. वी हैव टू प्रिपेयर द ग्रुप. 2 और 3 4 का एक एक ग्रुप बनाना है, उसके बाद 2 बनेगा, 2 और 2 प्लस 34 बिकम हाउ मच? 36. तो यहाँ पे आएगा 2 क्वोशिएंट और 36 रिमाइंडर. भूल जा रहे हो सब लोग? इसका मेथड तो पहले से पढ़ चुके हैं ना हम लोग. कोई भी नंबर को 999 से कैसे डिवाइड करते यस हैं. सर. बस हम लोग का बचा था कि 2 डिजिट को 2 डिजिट से कैसे करते हैं, 3 को 3 डिजिट से करते हैं. और डिजिट तो हम लोग ऑलरेडी कर ही चुके हैं ना हम लोग. ठीक है ना? ये ऑड डिजिट तो फिनिश हो गया, बस इवन डिजिट कर रहे थे हम लोग कि सेम सेम हो तो कैसा हो. तो फंडा क्लियर बिल्कुल? Yes, sir. यस सर. डिवीजन बाय Yes, sir. डिफरेंट डिजिट ऑफ 9 Sir, सीरीज. 3 with 3. मतलब
हाँ 3 with 3 तो मैं Three- बता दिया ना अभी, 3 with 3 तो मैं ये Yes, बता sir. दिया। 432 को 999 से डिवाइड करने से क्या होगा। ओके, दूसरा वाला क्वेश्चन आता है कि डिफरेंट डिजिट ऑफ 9 सीरीज हो, जैसे कि मैं 9 है और इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ 3 से, 3 डिवाइडेड बाय 9, तो मैं बता दिया ऑलरेडी इसको कि ये क्या होता है 0.3 बार होता है। लेकिन मैं जब 3 को 99 से डिवाइड करूं, ये तो देखो यहाँ पे डिफरेंट डिजिट है, तो क्या होगा आंसर। कोई दिक्कत नहीं, इसको डबल डिजिट बना सकते हैं ना हम लोग। Sir, 0.03 bar. Yes, sir. ओके 0.03 एंड बार अपन बोथ 0.0 एंड 3। ओके, सपोज 459 है और इसको डिवाइड कर रहे हैं 9999999, अपना मन मर्जी जितना लिखो 9, क्या करेंगे, ये कितना डिजिट Sir, है। you देखो ये don't need to 3 write डिजिट that है, much, sir. You ये just write 3 divided डिजिट, by 9 bar. नहीं डिवाइडेड बाय 9 बार नहीं है, ये क्या टर्मिनेटेड है, ये टर्मिनेटेड है। नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है, डॉट 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 लगाना पड़ता है। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डॉट डॉट डॉट, कि वो खत्म नहीं होगा, लेकिन ये तो खत्म हो चुका है ना। ये कितना डिजिट है, 3, 3 6, 3 9 और 10, ये सिर्फ 10 डिजिट है, मींस दिस इज टर्मिनेटेड सीरीज। ओके, तो ऐसा वाला कैलकुलेशन को कैसे करेंगे, देखो ये 3 डिजिट है, ये 3 डिजिट हो गया, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं 459, बाकी के लिए 0 डाल दो, 1 2 3 1 2 3 1, उसके बाद डॉट लगा के 0 डाल दो, बस खत्म, ये हो गया आंसर डायरेक्टली। और क्या करेंगे, ये सभी के ऊपर बार चिपकेगा, मतलब ये सब रिपीट होता है। आई होप द फंडा इज क्लियर फॉर एवरीवन। Yes, sir. बस Yes, फिनिश। sir. सो यस्टरडे वी हैव डिस्कस्ड अप टू दिस सीरीज ओनली। कहने का मतलब है हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, हम लोग पूरा पढ़ लिए कि सबसे पहले कोई भी नंबर को, कोई भी बड़ा नंबर को भी 9 से कैसे डिवाइड करते हैं, डिवाइड करते हैं 999 से, डिवाइड करते हैं 999 से, डिवाइड करते हैं n नंबर ऑफ 9 से, जितने भी 9 हो। ये हो गया। दूसरा हम लोग पढ़े कि इक्वल डिजिट से इक्वल डिजिट को कैसे डिवाइड करेंगे। तो पूरा 9 वाला फंडा क्लियर है। टुडे वी आर Yes, मूविंग टू, sir. टुडे वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू टुडेस टॉपिक। तो 9 सीरीज वाला हो गया। नाउ टुडेस टॉपिक इज डिवीजन बाय 25। तो कोई भी नंबर है उसको 25 से डिवाइड करना है। सो व्हाट टू डू, व्हाट इज द फॉर्मूला, हाउ टू डू दिस। सीधा सॉल्यूशन बताऊं कि फॉर्मूला समझाऊं पहले। कोई भी चीज को डिवाइडेड बाय 25 करना मतलब होता क्या है, सबसे पहले देखो एग्जांपल देता हूं मैं, सबसे पहले फॉर्मूला समझाता हूं। x को डिवाइड करना है 25, इसके क्या इक्वल कर सकते हैं, डिवाइड ना करके मल्टीप्लाई करेंगे, और 25 क्या बन जाएगा 1/25। तो मैं यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई करूं क्या, ताकि थोड़ा इजी वाला नंबर आ जाए। तो x अच्छा। इंटू 4 1 जा 4, और 25 4 जा कितना 100। तो चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं। सपोज है 327 है और उसको मुझे डिवाइड करना है 25। पहले देख लो आशुतोष, देन आई विल बी टेलिंग। तो इसका शॉर्टकट वाला फॉर्मूला है, कोई भी नंबर को यदि 25 से डिवाइड करते हैं तो इस नंबर को डायरेक्टली, इसको छोड़ दो, इसको तो भूल जाओ, इसको देखो 4 से मल्टीप्लाई कर देना। क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई, बताओ फटाफट। 4 7 जा 20. 1308, इज इट करेक्ट आंसर, क्लियर है। अरे जस्ट 4 से मल्टीप्लाई किया, सो इज इट क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो ये कितना डिजिट का है? कितना डिजिट का है, 2 डिजिट। Two digit. तो 2 डिजिट पहले डेसिमल डाल दो, क्योंकि देखो यहाँ पे 100 है, तो 2 डिजिट पहले डेसिमल डाल दो। तो ये फॉर्मूला पहले से हमको पता था क्या, नहीं था पता, लेकिन हम लोग कैलकुलेशन कर रहे थे लंबा चौड़ा मेथड पे। सो व्हाट इज द यूज ऑफ वैदिक मैथ्स, टू फाइंड आउट द इजीएस्ट मेथड आउट ऑफ ऑल द मेथड्स एंड टेल अस टू फॉलो द सेम। चलो कुछ प्रैक्टिस के लिए देता हूं। सपोज मुझे डिवाइड करना है 9 को किससे, 25 से। तो क्या करूंगा, 9 को सबसे पहले मल्टीप्लाई कर दूंगा 4 से। कोई भी नंबर 25 से डिवाइड होना मतलब है 9 को 4 से मल्टीप्लाई करना। कितना होगा आंसर, 36। 25 का नेक्स्ट बेस नंबर क्या है, 100,
क्योंकि इसको हम लोग 100 बना रहे हैं ना, तो 100 में 2 जीरो, तो यहाँ पे 2 डिजिट के पहले डेसिमल और जीरो, डायरेक्टली दिस इज द आंसर। 9 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू 0.36। चेक करना है तो कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कर लेते हैं। 9 को हम लोग डिवाइड करेंगे किससे? 25 से। तो डेसिमल डालेंगे तो 90 हो गया। 25 3 जा 75, कितना हो गया? 15। डेसिमल लगा गया है तो 150 हो गया। 25 6 जा 150 हो गया, रिमाइंडर 0। तो आंसर क्या गया? 0.36। सीधा हम लोग इतना लंबा चौड़ा डिवाइड ना करके आंसर निकाल दिए कि नहीं? Yes, So sir. everybody understood the division by 25? So मैं around I'm Yes, just sir. giving you total 4 questions I'm giving it to you all so that your proficiency will increase. First of all, first question है 3 2 7 8 को डिवाइड करना है 25 से। दूसरा क्वेश्चन है 4 2 5 को डिवाइड करना है 25 से। 3 1 7 9 को डिवाइड करना है 25 से, और ओनली 2 को डिवाइड करना है 25 से। Do it within 2 minutes and tell me the answer. Okay, फटाफट do it. So done. Very good. Within 1 minute you have done. Means you are taking 15 seconds to do this division. And afterwards, anyhow, it is going to be increase. How many Sir, are done. remaining? Okay, good. Now time off. We are doing now. So कोई भी चीज को 25 से डिवाइड करना मतलब है 4 से मल्टीप्लाई कर देना सीधा, because 25 4 is 100. Okay, now फटाफट multiply. Is it correct? Yes, sir. दो Yes. डिजिट Sir, decimal, one decimal zero also. and 1 2. Next, So 3 1 3 multiply by 4. 17 double. Only 17. Next, Yes, sir. 127.6 decimal 16. Sir, 127.16. So 127.16. very good. Then 0.0. Sir, 0.8. 0.08. perfect. So how much time I took to do this? I think maximum 30 seconds to do all the 4 questions. Again, it Yes, is sir. little multiplication only. So I was taking your answer also. That's why it is little late. Otherwise we would have done in less than that also. तो यदि हम लोग यदि इसको 10 सेकंड में 15 सेकंड मुझे लगा, इफ यू कैन डू इट इन 10 सेकंड और थोड़ा यदि स्पीड कर लोगे तो कितना होगा? 8 सेकंड। तो 4 टू क्वेश्चन को 8 सेकंड, मतलब एक क्वेश्चन को कितना? लगभग एवरेज में 2 सेकंड। इफ यू कैन डू, then everything will be super fine. Okay, next.
डिवीजन बाय 50, तो सबसे पहले कौन बता सकता है कि इसके लिए क्या किया जाएगा? शॉर्टकट कौन बताएगा? नाउ यू आर गोइंग टू क्रिएट द फॉर्मूला डिवीजन बाय 50. टेल मी फटाफट. Sir, we will do into 2. वेरी गुड. देन डिवाइडेड बाय 100 मींस 2 प्लस पहले डे. वेरी गुड. जस्ट फॉर एग्जांपल डिवीजन बाय 50, so x is divided by 50. This is Vedic, huh? And this formula should not be given, but I am giving it to you because you should create your own formula. So x divided by 50 is equal to x multiply 1 by 50. तो 50 को कैसे करेंगे तो 100 होगा when we multiply by 2. So directly I am writing 2x divided by 100 is the formula. It means you are going to multiply with the 2 और 2 digit पहले decimal we are going to put it. That will be the answer only. Now 32498 divided by 50 means what? Directly this number has to be multiplied with 2 means okay, this is the answer 649.96. Yes, sir. Okay, clear? तो Yes, चार sir. क्वेश्चन दूं फिर Sir, कर लोगे? Yes, sir. ओके. सिर्फ Yes, तो sir. 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई करना है और 100 से डिवाइड करना है मींस बिफोर 2 डिजिट यू आर गोइंग टू लेट इट. ओके, नाउ 4289 divided by 50, 7329 divided by 50. Okay, then 12131 divided by 50 and 432798 divided by 50. So 4 questions I have given it to you. Let us do it within 10 seconds because I have given you the formula of division by 50 without doing real division. So what is last question? Last question is 4. So what is last question? 432798. Last question is 4327. This is 3. Okay. 432798. Clear? Done? Oh, very good. Okay, Yes, you have sir. taken around 12 to 13 seconds. No problem. Very good. तो ऑलरेडी आई Done, टोल्ड यू द sir. फॉर्मूला. मैं पहले से फॉर्मूला बता दिया था. कोई भी नंबर को x से डिवाइड करना मतलब एल्जेब्रिकल प्रूव आई हैव डन. तो x को 50 से डिवाइड करना कहने का मतलब क्या है? x को मल्टीप्लाई करना 1 बाय 50 से. तो 50 को 100 कैसे बनाएंगे? जब 2 2 मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ तो 2 into x हो गया 2x और 50 2 जा 100. कहने का मतलब है x को मतलब कोई भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद जब डिवाइड करेंगे 100 कहने का मतलब है 2 डिजिट पहले से हम लोग डेसिमल पुट कर लेंगे. ओके, तो सबसे पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई करो कितना होगा? 8578. 2 डिजिट पहले Yes, पुट sir. कर देंगे तो हो जाएगा 85.78. डन. इसको 2 से Yes, मल्टीप्लाई करो sir. कितना होगा? Yes. Sir, answer is 146. 146.5. ओके, डन. वेरी गुड. नेक्स्ट मल्टीप्लाई करो 2 से 242.62. is it? Yes, sir. 242.60. वेरी गुड. ये लंबा वाला नंबर है, इसको भी मल्टीप्लाई करो कितना होगा? Sir, Sir, 8655.82. 5.96. 8658.96. 8.96. Is it? Yes, sir. नहीं, दिस इज 5. वेट, Sir, it will be 55, sir. हाँ, इट इज 55. मैं 8 लिख दिया था, 55 है ये. ओके, क्लियर? सो आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर. डिवीजन बाय 50. Yes. अब भी वाला फॉर्मूला यू Yes, ऑल आर sir. गोइंग टू क्रिएट. आप लोग सब लोग बनाओगे. व्हेन वी डिवाइड एनी नंबर बाय 125 देन व्हाट टू डू? पहले से फॉर्मूला, हाँ कोई भी पूछ सकते हो फॉर्मूला व्हाट हैज टू बी क्रिएटेड. एंड विद So 5 into सेकंड 4 divided by 5. नहीं, इतना लंबा क्यों करेंगे? Sir, into a divided by 1000. एग्जैक्टली, दिस इज द करेक्ट आंसर. 125x है, ठीक है ना? सपोज सॉरी, x डिवाइडेड बाय 125 है, ठीक है ना? तो क्या करेंगे इसका? x डिवाइडेड बाय 125 मतलब x इंटू 125 हो जाएगा 1 बाय 125. इससे बेटर 125 को होल नंबर कैसे बनाएंगे? जब इसको मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे, ठीक है ना? तो कितना हो जाएगा? 8 इंटू एक्स बिकम 8x और 125 8 जा हो जाता है 1000. कहने का मतलब है कोई भी नंबर को 8 से बस मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 डिजिट पहले डेसिमल लगा देंगे. आंसर हो गया रेडी. सो फॉर्मूला इज क्रिएटेड बाय यू ऑल पीपल.
Now can you forget it? Yes, sir. 1 divided by 125. 2 सेकंड में आंसर निकालो फटाफट. Sir, Sir, Yes. Sir, 8. Okay. sir, 6 times 8 point double 8. 8. तो ऐसा कोई मैथमेटिक्स है जिससे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं? sir, ऑब्वियसली है. एंड दैट इज Yes, ओनली sir. वैदिक. It is Vedic mathematics. एग्जैक्टली. तो देखो, किसी को भी नंबर, जब स्कूल खुलेगा सब लोग क्या करोगे, ऐसे टाइप का क्वेश्चन अपना दोस्तों को बताओगे और sir, बोलोगे कि Yes, 2 sir. सेकंड में टाइम देख रहा हूँ, आंसर निकाल के बताओ. तो वो लोग कर पाएंगे? No, sir. If ये they know, क्ला- then they ओके, can do. ऑब्वियसली Sir, बट हाउ दे कैन नो? sir, unfortunately, Vivan and Shivam are doing Vedic maths. ओके, ग्रेट. ओके, सो shall we start again? तो ये हो गया Sir? 125 का. यस, टेल मी. sir. Because of network problem, I was leave. So can you sir explain it once? ऑब्वियसली, सेकंड क्वेश्चन आई एम टेलिंग. 1 3 2 4 5, इसको हम लोग डिवाइड करने वाले हैं 125 से. तो मैं इसका फॉर्मूला बताया था कि कोई भी नंबर जैसे दिया गया है उसको पहले 8 से मल्टीप्लाई करोगे, जो भी आंसर निकलेगा उसका 3 डिजिट पहले डॉट लगा दोगे. 3 डिजिट पहले डॉट लगा दोगे. बिकॉज व्हाई? बिकॉज देयर आर 3 zeros are here. That's why before 3 digit you need to put the decimal. Okay? तो कोई भी नंबर को 125 से डिवाइड करना, कहने का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई बाय 8 कर लो. फटाफट करो. One 1059.60. 105960 और यहाँ पे डेसिमल पुट कर देंगे तो हो गया 105.960. बिल्कुल क्लियर है? चेक कर लो मल्टीप्लिकेशन सही है Yes, कि नहीं. sir. मल्टीप्लिकेशन इज करेक्ट. Yes, sir. Okay, then the division is Yes, also correct because we know the formula. Before 3 place we need to put the decimal. Asutosh, I think right now you are clear. Yes, sir. Okay, so simple है. ठीक है. सपोज कोई भी नंबर है 10000, कितना है, 10,000. इसको यदि हम लोग डिवाइड करेंगे 125 से तो कितना सेकंड टाइम लगेगा? Sir, 2 seconds. करके दिखाओ 2 सेकंड में बिना लिखे. राइट नाउ यू आर नॉट गोइंग टू राइट एनीथिंग एल्स. हाँ हाँ हाँ. हेलो. Sir, can I say the answer? Yes, yes, tell me what is the Sir, I answer think- orally. Sir, हाँ, फटाफट. 988.88. हे Sir, 80. भगवान, 80 is the correct answer. आशुतोष, you are Yes, wrong. sir. 80. मैं बताया था ना, कोई भी नंबर यदि हो तो उसको पहले 8 से मल्टीप्लाई करोगे. कहने का मतलब क्या है? Yes, sir. 80,000. लेकिन हमको फिर 3 ठो डिजिट को डिवाइड करना है, मतलब 3 ठो डिजिट को काट देना है. तो आंसर क्या निकला? 80. Yes, sir. Only 80. So finally you are knowing how to divide any number by 125 within a second. Yes, sir. ओके, सो बिल्कुल समझ में आ गया. उसके बाद थोड़ा सा आइडिया कुछ देता हूं. मैं तो सबसे पहले ये फॉर्मूला ही बता दिया कि कैसे बनाना है. यदि कोई भी नंबर है x है, उसको यदि मैं 500 से डिवाइड कर रहा हूं तो फॉर्मूला कौन बताएगा, करना है क्या है? Sir, into 2 divided by 1000. वेरी गुड. कोई उसी नंबर को पहले से 2 में मल्टीप्लाई करना है और 1000 से डिवाइड करना है. कहने का मतलब है 2 से मल्टीप्लाई करके 3 डिजिट पहले डेसिमल पुट करना है. फॉर्मूला समझ में आ गया? खुद से फॉर्मूला क्रिएट कर Yes, सकते हो. sir. Yes, sir. खुद से फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हो. दैट इज सो Yes, सिंपल. sir. वेरी गुड. ठीक है ना? दैट्स इट, करेक्ट. तो ये हो गया नॉर्मल कुछ ट्रिक्स है. अभी हम लोग कुछ एक्स्ट्रा ट्रिक्स के बारे में ध्यान देने वाले हैं. Yes, sir. व्हाट इज द नेक्स्ट ट्रिक? डिवीजन बाय 11. 11. सबसे पहले हम लोग पढ़े थे कि मल्टीप्लिकेशन बाय 11 कैसे होता है. कैसे होता है? जैसे कि 25 है और इसको 11 से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? फिलहाल तो 11 से मल्टीप्लाई तो वैसे ही कर लोगे, 275 करके. आंसर बिकम 275. ये पहले से बता दिया था, लेकिन ये एप्लीकेबल है बड़े बड़े नंबर्स के लिए. एनी हाउ 25 को यदि हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, क्या करेंगे, 0 0 पुट कर लेंगे. ये दोनों को प्लस करने से 2, ये दोनों को प्लस करने से हो रहा है 7 और ये दोनों को प्लस करने से 5. 275 इज द करेक्ट आंसर.
तो ये था हम लोग का मल्टीप्लीकेशन। सो बट एज आर करंट टॉपिक इज डिवीजन बाय 11, तो ऐसा कुछ फॉर्मूला है क्या जिससे हम लोग 11 को डिवाइड कर सकते हैं इजीली? नॉर्मल मेथड मेरे पास है 4 5 7 8, एक कोई भी नंबर एक ले लिया, उसको हम लोग डिवाइड करेंगे 11 से। तो अभी काउंटिंग स्टार्ट करो, कितना सेकंड लग रहा है इसको। तो सबसे पहले Yes, 11 से sir. डिवाइड करूंगा, तो 11 से डिवाइड करूंगा तो 11 4 जा 44, उसके बाद यहाँ पे आ गया 17, 11 1 जा 11, 17 से 11 गया 6, फिर नीचे उतरा 8, तो 11 6 जा 66 और रिमाइंडर आ रहा है 2। तो ये वाला प्रोसेस हम लोग पढ़े हैं, ठीक है ना? Yes, लेकिन जब sir. बेसिक मैथ में जाते हैं तो थोड़ा सा उल्टा मेथड यूज करते हैं। तो कैसे करेंगे उल्टा वाला मेथड? कुछ गेस कर सकते हो कैसे किया जाएगा? So like multiplication, we will add 0. बताओ। सबसे पहले देखो यहाँ पे हम लोग कर क्या रहे थे, ऐड कर रहे थे ना, लेकिन अभी यहाँ पे माइनस करने वाले। ओके, लेट अस सी एवरीवन, 4 5 7 8 ये क्वेश्चन है, और इसको हम लोग क्या करना है, डिवाइडेड बाय 11 करने वाले हैं, ठीक है ना? ध्यान से देखना So सब लोग। 45780 minus 4578. नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। सबसे पहले ध्यान दोगे, 4 5 7 8 है, सबसे पहले मैं इसको लिखूंगा 4, कोई दिक्कत है? No, sir. No, sir. ओके, उसके बाद 5 से 4 को माइनस करूंगा, 5 से 4 को माइनस करूंगा, आंसर कितना आएगा? So 1. 1। फिर 7 से 1 को माइनस करूंगा, Six. मतलब ये ऊपर वाला नंबर से नीचे वाला नंबर को माइनस करूंगा। 7 से 1 गया, कितना हो गया? 6. 6. Sir, उसके 6. बाद 8 से 6 को माइनस करेंगे, कितना आएगा? So 2. तो इसको गोला बना लो और इसको गोला बना लो, ये हो गया कोशिएंट और ये हो गया रिमाइंडर। कितना सेकंड Sir. लगा? फिलहाल मैं बताने के लिए ज्यादा टाइम ले लिया, लेकिन खुद से करोगे तो कितना सेकंड लगेगा? Sir, but what if we minus and the answer come in negative number? बता रहा हूँ, वो भी आ रहा है क्वेश्चन, टेंशन मत लो उसका। सबसे पहले ये पहला लेवल का सीख लिए, उसके बाद जब क्वेश्चन का आंसर नेगेटिव भी आएगा तो उसको भी कैसे सॉल्व करना है मैं बता दूंगा। चलो एक नंबर करते हैं, 2 4 5 9, इसको डिवाइड करेंगे 11 से। फटाफट आंसर बताओ क्या होगा? सबसे पहले क्या लिखेंगे? 2, है ना? उसके So बाद double 4 से 236. ओके, वेरी गुड। 4 से 2 को माइनस करूंगा तो कितना आएगा? फिर आएगा 2। उसके बाद फिर 5 से 2 को माइनस करूंगा तो कितना आएगा? 3। उसके बाद फिर 9 से 3 को माइनस करूंगा तो कितना आएगा? 6। So 6. तो आंसर हो गया 223 और रिमाइंडर आएगा 6। चेक कर लें क्या? Yes, sir. ओके, चलो चेक कर ही लेते हैं। 2 4 5 9, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ 11 से, कितना? ये देखो, ये तो हम लोग 2 सेकंड में कर सकते हैं, फिलहाल बताने के लिए टाइम लिया। 11 2 जा 22, 4 से 2 गया 2 25, 11 2 जा फिर हो गया 22, 5 से 2 गया 3 और यहाँ पे आ गया 9। सो 11 3 जा 33, तो 9 से 3 गया 6, तो रिमाइंडर आ गया 6, जो कि हम लोग यहाँ पे लिखे हैं, और 223 भी यहाँ पे आ गया, जो कि है कोशिएंट। आगे समझ में सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ओके, गुड। एक्चुअली ये कैसा काम करता है पता है ना? हम्म 2 4 5 9 है यहाँ पे, Yes, sir. उसके बाद 11 से हम लोग कर रहे हैं, तो यहाँ पे फिर लिखेंगे 2 4 5 9। कहने का मतलब यहाँ पे एक 0 डालने का, दोनों को माइनस कर लो, ये हो गया 2, 4 से 2 गया 2, 5 से 4 गया नहीं, थोड़ा सा यहाँ पे क्रिटिकल है, ये वाला मेथड शायद काम नहीं करेगा। चलो यहाँ से हम लोग माइनस करते हैं 0।
यहाँ पे 0 है, okay, I will be discussing this in the later part. Okay, actually I hope everybody have understood this method. Yes, sir. Okay, Yes, sir. now, okay, now we are discussing the next part. Next part in the sense how to divide 11 Sir, when when the you are doing minus, it is coming 22 and 31. okay, actually this is different one. Okay, no problem. Okay, now we are moving forward to the next part. Next Yes, division sir. is 12 to 19, but before that some questions I am taking which is related to this. Okay, सबसे पहले देखो यहाँ पे 2 3 7 8 है, ऐसा टाइप का नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो 2 सेकंड में करते हैं। पहला चीज है 2, 3 से 2 गया 1, 7 से 1 गया 6 और 8 से 6 गया 2, तो 216 आ रहा है और 2 रिमाइंडर आ रहा है। इज इट? Yes, sir. लेकिन ये वाला नंबर कर लो 4 7 2 5, ये वाला जब नंबर को लेंगे और हम लोग डिवाइड करेंगे 11 से, तो मेरा वाला मेथड पे नेगेटिव टाइप का नंबर कुछ आएगा। चेक करें, सबसे पहले आएगा यहाँ पे Yes, sir. 4, 7 माइनस 4 कितना आएगा? 3। उसके बाद देखो 2 से 3 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? -1। -1. ठीक है ना? तो ये वाला मेथड Yes, काम sir. दे रहा है क्या? नहीं दे रहा है। जब ये वाला मेथड काम नहीं देगा तो जो फॉर्मूला है वो रॉन्ग नहीं है, लेकिन उसमें थोड़ा सा हम लोग को ना एक पॉइंट पे सुधार करना पड़ता है। वी नीड टू चेंज लिटिल इन अ पर्टिकुलर पार्ट वेयर इट इज रिक्वायर्ड व्हेन वी डिवाइड 11 टू गेट द नेगेटिव नंबर्स। ओके, नाउ वी आर चेकिंग वंस अगेन। चेक कर लो सब लोग ध्यान से। 4 7 2 5 है यहाँ पे। जब इसको हम लोग 11 से डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले क्या ध्यान रखेंगे, देखो जब तक पॉजिटिव नंबर निकल रहा है तब तक हम लोग करते रहेंगे। पहला वाला मेथड है 4 लिखेंगे, उसके बाद 7 से 4 गया, कितना हुआ? 3. 3। बिल्कुल क्लियर है। सबसे पहले इसका डिवीजन निकाल देते हैं 4 7 2 5, ताकि दोनों एक साथ चेकिंग होते चला जाएगा। 11 11 4 जा 44, 7 से 4 गया, कितना हो गया? 3। हाँ 3, ये हो गया 2 32, तो 11 3 जा कितना हो गया? 33। तो जाएगा क्या? उसलिए यहाँ पे नेगेटिव आ रहा था। तो क्या लेंगे Yes, हम लोग? sir. 11 2 जा लेंगे, यहाँ पे आएगा 22, फिर रिमाइंडर आएगा 10, फिर नीचे यहाँ पे उतरेगा 5, तो 11 कितना जाएगा? 11 9 जा 99 और रिमाइंडर आएगा 6। ठीक है, तो यहाँ पे आ रहा है 429। तो देखो ये वाला मेथड पे भी हम लोग का 499 आएगा। कैसे? और रिमाइंडर 6 भी आएगा। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि हम लोग शॉर्टकट कर रहे हैं। 4 से 4 आया, 7 से 4 गया 3, बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद 2 Yes, sir. से 3 माइनस हो रहा है क्या? No. No, 2 sir. से 3 नहीं हो रहा है, तो हम लोग यहां से एक कॉपी लेंगे, तो कितना हो जाएगा? 12 और 7 बन जाएगा 6, 7 बन जाएगा 6, तो 6 से 4 Okay, गया, sir. यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे 12, 12 से 2 हो गया, फिर क्या हो गया? 10। ठीक है ना? उसके बाद फिर 5 से 10 गया, कितना होगा? नहीं जाएगा फिर। तो क्या करेंगे फिर? यहाँ जो मतलब 2 हुआ था, यहां से फिर एक कॉपी लेंगे, तो ये 5 कितना हो गया? 15 हो गया। तो 15, फिर जब ये 15 हो गया तो ये 10 क्या हो जाएगा? एक लेस हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 9। उसके बाद 15 से 9 गया, कितना होगा आंसर? 6। तो ये आ गया 4, ये आ गया 2 Yes, और sir. ये आ गया 9 और यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा 6। बस इतना ही चीज का ध्यान रखना है, जब कोई नंबर नहीं जाएगा तो उससे एक कम कर लेना पिछले वाला। और ये है नया टेक्निक और इसको बोलते हैं डॉट मेथड। और ये डॉट मेथड पे हम लोग माइनस भी करते हैं, तो वैसे डॉट वाला मेथड पे हम लोग यहाँ पे ये भी प्रोसेस आगे करने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल क्लियर। एक क्वेश्चन दूं मैं? दूसरा Yes, क्वेश्चन sir. देता हूँ। 7 3 8 9, यहाँ पे सेकेंड डिजिट पे ही हम लोग का नेगेटिव नंबर आ जाएगा जब डिवाइड करेंगे 11। फटाफट करके दिखाओ।
7627. आ गया ना? ओके, सबसे पहले वी आर राइटिंग 7, आफ्टर दैट 3 से 7, यस, सबसे पहले Sir. देखो फॉर्मूला, 7 हो गया 7, और 3 से 7 नहीं जाएगा तो यहाँ पे एक कॉपी करेंगे, तो ये हो गया 13, और 7 बन जाएगा 6, उसके बाद 13, सो 13 से 6 गया, कितना होगा? 7, है ना? उसके Yes, बाद sir. 7 से 8 से 7 माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा 1, उसके बाद 9 से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 8। तो यहाँ पे बार लगा देंगे, ये हो गया 671 क्वोशिएंट, और 8 हो जाएगा रिमाइंडर। बिल्कुल क्लियर है? Yes, sir. दूसरा वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। 8 9 5 6, सबसे पहला यहाँ पे आएगा 8, 9 से 8 गया 1, लेकिन 5 से 1 जाएगा ना? क्या होगा? Yes, 9 sir. से 8 गया 1, उसके बाद 5 से 1 गया 4, 6 से 4 गया 2, ये इजीली हो गया। चलो फिर एक तो क्वेश्चन करते हैं। 8 2 9 4, कैसे करेंगे इसका? 11 से डिवाइड। सबसे पहले 8 आएगा, 2 से 8 माइनस कर सकते हैं क्या हम लोग? No, sir. नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे? 8 बन गया 7, और ये बन गया 12, सो 12 से 7 अभी कर सकते हैं, Yes, sir. कितना हो गया? 5। उसके बाद 9 से 5 माइनस कर सकते हैं, कितना होगा? 4। उसके बाद 4 से 4 माइनस करेंगे, 4. कितना आएगा? 0। तो ये आ गया क्वोशिएंट और ये आ गया रिमाइंडर। बिल्कुल इजी है मेथड। Yes, sir. ओके, और एक क्वेश्चन करते हैं। 3 2 7 1 9, इसको डिवाइड करेंगे 11 से। सबसे पहले क्या लिखेंगे? 3, 2 से 3 माइनस नहीं होगा, तो 3 को कर देंगे 2, ये हो गया 12, 12 से 2 गया, कितना होगा? 10। ओके, सो 7 से 10 नहीं जाएगा, तो फिर 10 बन जाएगा 9, और 7 बन जाएगा 17, तो 17 से 9 गया, कितना होगा? 8। ओके ना? 17 से 9 गया, कितना हो जाएगा? 8। उसके बाद 1 से 8 माइनस नहीं होगा, तो 8 बन जाएगा 7, और 1 बन जाएगा 11, तो 11 माइनस 7 कितना हो जाएगा? 4। उसके 4. बाद 9 से 4 गया, कितना 5. होगा? 5। तो नंबर हो गया 2974, और 5 हो जाएगा रिमाइंडर। दिस इज द मेथड व्हाट वी आर फॉलोइंग राइट नाउ। आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर। डिवीजन बाय 11। Yes, sir. Yes, That's sir. great.